Hello everyone. Today we will discuss government budget. In my previous video, we already discussed revenue receipt. The revenue receipt is that receipt which do not change the assets and liabilities of the government. There are two sources of income of the government: revenue receipt, tax receipt, and non-tax receipt. Now we discuss capital receipt. Capital receipt is that receipt which change the assets and liabilities of the government. It means in capital receipt create a liabilities and reduction in assets. When create a liability, when government take loan from other source, pay with interest in futures, this create the liabilities. When governments meet out their expenditure, sell their assets in private hand and in foreign hand, then assets of the government reduce. Source of capital receipt: there are three source of capital receipt. Recovery of loan: when central government recover loan from state government, assets of the state government reduce. जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से रिकवरी करेगी तो स्टेट गवर्नमेंट के एसेट्स क्या है, रिड्यूस हो जाएंगे. तो एसेट रिड्यूस होने का कारण ही ये क्या है, कैपिटल रिसिप्ट है. borrowing loan: when government take loan from public through profit fund, small saving, borrowing from RBI, rest of the world, create liabilities of the governments. Whenever government take loan from outsiders, then government pay principal value and interest in future. So that is a part of capital receipt. Disinvestment: last 20 years every governments sell their PSU, public sector undertaking, in private hands. That's create the assets. So it is known as a capital receipts. Disinvestment: when government sell their share of public sector to private sector, it reduce assets of the government, like sell ONGC शेयर टू प्राइवेट सेक्टर. यानी कि एक ONGC एक PSU कंपनी है जिसका कुछ शेयर क्या उसने गवर्नमेंट ने सेल कर दिया. अभी BPL है, ऑयल प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं, गवर्नमेंट कंटिन्यू इसको सेल कर रही है. उस सेल करने से गवर्नमेंट्स के एसेट्स कंटिन्यू रिड्यूस हो रही हैं. बट बेसिक डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट: रेवेन्यू रिसिप्ट इज दैट रिसिप्ट which do not change the assets and liabilities of the government. There are two sources of income. One is tax and other is a non-tax revenue. Other is capital receipt. Capital receipt is that is which change the assets and liabilities of the government. Source: recovery of loan, borrowing like loan, and disinvestment. That is a source of capital receipt because it's change the assets and the liabilities of the government. Now discuss next topic, budget expenditure. Budget expenditure, it refers to estimated expenditure of the government during fiscal, यानी कि 1 ईयर के अंदर गवर्नमेंट एस्टिमेट जितने भी एक्सपेंडिचर करती है उसे क्या बोलते हैं, बजट एक्सपेंडिचर बोलते हैं. इट इज़ क्लासिफाइड इनटू रेवेन्यू एंड capital receipts as well as in we are already read in receipt, capital receipt and revenue receipt. Here also revenue and capital expenditure. Revenue expenditure, it is that expenditure which do not change the assets and liabilities of the government. It is a short period expenditure and recurring इन नेचर मीन्स कि जो खर्चे गवर्नमेंट को रेगुलर करने पड़ते हैं उसे रेकरिंग इन नेचर बोलते हैं. विच इज इनकर्ड एवरी डे इन द फॉर्म ऑफ नॉर्मल रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड मेंटेनेंस सर्विस. यानी कि ऐसे खर्चे जो गवर्नमेंट को मेंटेनेंस पे खर्च करने पड़ते हैं, रूटीन के अंदर खर्च करने पड़ते हैं, ये सभी खर्चे क्या शॉर्ट पीरियड में आते हैं और ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट हैं. फॉर इंस्टेंस वेज बिल ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को वेजेस देने पड़ते हैं, सैलरी देनी पड़ती है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है कंटिन्यू. एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडी, ग्रांट, रूरल डेवलपमेंट, डिफेंस परचेजिंग, ये खर्चे गवर्नमेंट के रेगुलर एक्सपेंडिचर्स हैं. इस कारण से क्या बोलते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं. नेक्स्ट इज
प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो प्लान भी हो सकता है और वो नॉन प्लान भी हो सकता है। प्लान मीन्स कि व्हेन गवर्नमेंट ए फ्रेम पॉलिसी लाइक 5 ईयर पॉलिसी, तो जो खर्चे उसके 5 प्लानिंग के अंदर अडॉप्ट कर लिए जाते हैं एवरी डिपार्टमेंट के लिए, वो क्या है, एक प्लान एक्सपेंडिचर है। कुछ गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जो अननेसेसरी आ जाते हैं, जैसे कि नेचुरल कैलेमिटी आ गई है, फ्लड आ गया है, या फिर क्या वोल्केनिक प्रॉब्लम्स आ गई है, या इकोनॉमी के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई है, जैसे अभी कोरोना आया हुआ है। तो ये गवर्नमेंट को क्या है, नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर करने पड़ते हैं। तो प्लान्ड एक्सपेंडिचर इज दैट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट which is related to specified plans and development program during fiscal year। मीन्स जो खर्चे गवर्नमेंट ने पहले ही प्लान किए हुए हैं उस एक्सपेंडिचर को बोलते हैं प्लान्ड एक्सपेंडिचर। जैसे गवर्नमेंट जब बजट पास करती है तो एजुकेशन के डिपार्टमेंट के लिए एक फिक्स अमाउंट डिसाइड कर लेती है, हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए कर लेती है, इरिगेशन से कर लेती है, एंड अदर डिपार्टमेंट के लिए कर लेती है। ये सारे क्या हैं, प्लान्ड एक्सपेंडिचर हैं, जो एक प्लान के थ्रू गवर्नमेंट ने प्लानिंग की हुई है कि हमने इतना खर्चा इस डिपार्टमेंट पे खर्चे हैं ताकि इनकी परफॉर्मेंस राइज हो। नेक्स्ट है इसके अंदर, इट मे बी रेवेन्यू लाइक असिस्टेंस टू स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, बिल्डिंग, ब्रिज एंड हॉस्पिटल। यानी कहने का मतलब कि जो प्लान एक्सपेंडिचर है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हो सकता है और कैपिटल भी हो सकता है। कैपिटल कब होगा, जब गवर्नमेंट कोई बिल्डिंग बनाती है उस पर खर्च करना पड़ता है तो वो परमानेंट एक्सपेंडिचर हो जाता है, तो वो कैपिटल शिफ्ट हो गया। हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनानी है तो ये भी हो जाता है। अगर हॉस्पिटल की बिल्डिंग को मेंटेन करना है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अगर बिल्डिंग को बिल्ट करना है, कोई नई बिल्डिंग बनानी है, या रोड या ब्रिज को नया नया बनाना है, तो वो क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, इट इज़ दैट एक्सपेंडिचर विच इज़ नॉट रिलेटेड टू प्लान एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंडिचर ऑन रूटीन फंक्शन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस एंड सब्सिडी। ये खर्चे हैं गवर्नमेंट को लॉ एंड ऑर्डर पर खर्च करने पड़ते हैं। कोई इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, कोई धर्म से रिलेटेड, कम्युनिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, इनको अननेसेसरी इन समस्याओं को हल करने के लिए गवर्नमेंट को डिफेंस के ऊपर अमाउंट खर्च करना पड़ता है, एंड गवर्नमेंट को सब्सिडीज़ देनी पड़ती है। डिफेंस के ऊपर अननेसेसरी खर्चे जाते हैं, जैसे कि अभी चाइना और पाकिस्तान के हमारे रिलेशन अच्छे नहीं हैं, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो गवर्नमेंट को इमीडिएटली डिसीजन लेना पड़ता है, उस पर एक्सपेंड करना पड़ता है। ये क्या होते हैं, सारे नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर है। तो इसलिए प्लान्ड एक्सपेंडिचर विच आर स्पेसिफाइड एंड adopt at during a plan, non-plan unnecessaries, and we can say that which are not planned but government expand due to maintain law and orders in a economy. Next is budget deficit, is important question. बजट डेफिसिट मीन घाटा, सीधी सी बात है, डेफिसिट मीन घाटा। बजट डेफिसिट मीन्स total expenditure is greater than total revenue. It is known as a government deficit. It is a part. Its part revenue deficit. Revenue deficit means total revenue expenditure is greater than total revenue receipt. How is revenue deficit correct? कहते हैं कि जब गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के रेवेन्यू रिसिप्ट से ज़्यादा हो जाएंगे तो वो रेवेन्यू डेफिसिट है। इसको गवर्नमेंट करेक्ट कर सकती है क्योंकि ये एक इनिशियल अलार्म की तरह है जो हमें टाइम टू टाइम अवेयर करता है कि हमें अपने खर्चों को कम करना चाहिए या हमें अपनी इनकम को राइज करना चाहिए। इसके लिए ब्रोइंग और सेल ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स, जब गवर्नमेंट क्या करेगी, उधार लेगी इसको पूरा करने के लिए, या क्या करेगी, गवर्नमेंट अपने एसेट्स को सेल करेगी, तब इन खर्चों को ख़त्म किया जा सकता है। एंड थ्रू इंक्रीज टैक्स रिसिप्ट, जब गवर्नमेंट अपनी इनकम को राइज करेगी, टैक्स सिस्टम को राइज करेगी, लेकिन टैक्स को एक लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकती, तो इसलिए टैक्स बढ़ तो सकते हैं लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ सकते हैं। थ्रू रिड्यूस अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, जब गवर्नमेंट अननेसेसरी एक्सपेंडिचर करती है उनको रोकने का प्रयास करे, उसके लिए प्लानिंग करे कि हमने ये खर्चे हैं जो वेस्टेज हैं जिसको करने से बचा जा सकता है, तो गवर्नमेंट अननेसेसरी एक्सपेंडिचर को अवॉइड करके भी रेवेन्यू डेफिसिट से बच सकती है। नेक्स्ट इज फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट मीन्स
टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन टोटल रिवेन्यू अदर देन बोरिंग, यानी कि उधार को छोड़कर जो खर्चे शामिल किए जाते हैं उसे फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। मीन्स हम ये कह सकते हैं बोरिंग रिक्वायरमेंट ऑफ ए कंट्री इज कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट। इसका सिंपल मीनिंग लेते हैं, गवर्नमेंट को मान लो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर 12,000 है, गवर्नमेंट की इनकम कितनी है 10,000 है, 2,000 गवर्नमेंट को मोर एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा है, तो गवर्नमेंट उस एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए, उस एक्सपेंडिचर को बियर करने के लिए 2,000 करोड़ रुपये का गवर्नमेंट लोन ले लेती है, तो वो क्या बन जाता है फिस्कल डेफिसिट बन जाता है। मीन्स बोरिंग रिक्वायरमेंट ऑफ ए कंट्री इज कॉल्ड ए फिस्कल डेफिसिट। या हम ये कह सकते हैं टोटल एक्सपेंडिचर इज मोर देन टोटल रेवेन्यू, किसको छोड़ के उधारी को छोड़ के, अदर देन बोरिंग। अगर हम कह देते हैं टोटल एक्सपेंडिचर इज मोर देन टोटल रेवेन्यू तो क्या बन जाएगा बजटरी डेफिसिट बन जाएगा। ये ध्यान रखना, मोस्टली बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन टोटल रेवेन्यू इज कॉल्ड ए बजटरी डेफिसिट। टोटल रेवेन्यू लेस देन टोटल एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट बोरिंग इज कॉल्ड ए फिस्कल डेफिसिट। नीचे एक्सप्लेन किया गया है, टोटल एक्सपेंडिचर मीन रेवेन्यू प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन टोटल रेवेन्यू, रेवेन्यू प्लस रिसिप्ट प्लस रिकवरी ऑफ लोन प्लस डिसइन्वेस्टमेंट। किसको छोड़ दिया गया है बोरिंग को छोड़ दिया गया। एक इसको टर्म को अच्छी तरह लर्न करने के लिए हमें प्राइमरी डेफिसिट की जरूरत पड़ती है। प्राइमरी डेफिसिट मीन्स फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, यानी कि गवर्नमेंट अपने खर्चों को पूरा करने के लिए जो उधार लेती है, अगर वो इंटरेस्ट में पे कर रही है तो गवर्नमेंट अपने इंटरेस्ट पेमेंट की कमिटमेंट को पूरा करने के लिए ही लोन दे रही है, तो उसे क्या बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट बोलते हैं। प्राइमरी डेफिसिट जीरो भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है। प्राइमरी डेफिसिट जीरो कब होगा जब फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट होगा, तो प्राइमरी डेफिसिट क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। जब गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट इज मोर देन इंटरेस्ट पेमेंट है, इसका मतलब गवर्नमेंट अपने इंटरेस्ट की पेमेंट करने के लिए भी लोन ले रही है, और जो अदर अमाउंट है उसको डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के लिए भी खर्च कर रही है, दैट इज कॉल्ड ए प्राइमरी डेफिसिट। दिस इज ए चैप्टर ऑफ गवर्नमेंट बजट। इफ एनी स्टूडेंट फेस प्रॉब्लम कॉल मी एंड solve your problem. Thank you.